Good afternoon, everyone. I hope everyone is good. A warm welcome to Genesis One webinar. Today we will discuss about our one of the session which is related with is my GST product and related with GST solution. Today's webinar agenda will be smart reporting, smarter decision, a guide to advanced MIS reporting in is my GST. To discuss this session, let me introduce with you all the speakers and panelists. Ms. Nistha Jain, Executive is my GST Support, Genesis One. Mr. Ankit Kumar, Executive is my GST Support, Genesis One. Mr. Gagan Mendiratta, Team Leader is my GST Support, Genesis One. Mr. Gurdeep Singh, Executive Genesis is my GST and Genesis One. So it's welcome to all, and guys, please go ahead and discuss about today's session. Thank you, everyone. Thank you for your presence. Guys, please go ahead and discuss. Thank you. Okay, so I hope my screen is visible. Let me just share. Okay, first of all, thank you everyone for joining today. As many of you already know me, I am managing South Zone clients on EaseMy GST. So today we are connecting for webinar, which is smart reporting through EaseMy GST. With me, there is my colleague who is Ankit Kumar, who is going to show you the live product of EaseMy GST and help you to guide to understand MS report better. So the reason why we are conducting this webinar is most of you already using our services for GST filing and reconciliation. But we frequently get the queries of what kinds of report EaseMy GST is offering and what kinds of MS reports we are providing. For this, we come on this conduction of this webinar and we want to show you reports which EaseMy GST is offering to you so that we can manage compliance in a better way. So let's start with this agenda of this meeting. I'm quickly sharing you the agenda of this meeting. First, I'm going to tell you about MIS report. Then we will go with the benefits of MIS report. After this, we have categorized this MIS report into 6 types. Then I will explain you each and every type of MIS report one by one. Then my colleague, as I told you earlier, my colleague will explain you how to generate and validate these kinds of MIS report on EaseMy GST. He will show you the live product. Okay, so the people who don't know about EaseMy GST, let me share my screen. Let me give you the brief of EaseMy GST first. So EaseMy GST is end-to-end GST product. We are having 3 modules. First one is GST return, where we are providing you GST filing and reconciliation. Also some analytical report, which is very easy to understand. In this webinar, we are going to discuss about this MIS report only. The second product which we are offering is eWaybill, which is very helpful for which is very seamless integration with the ERP, and it is also including some reports which are very helpful for day-to-day activity. And we are integrated with Genesis, but we are also providing services to the non-Genesis client. The third module is e-invoicing. We ensure your real-time generation of invoicing. That's why we are reconciling your e-invoice data with invoice of your ERP. So I am very glad to share. I want to show you some glimpse of EaseMy GST presence. I'm very glad to share that we are having pan-India presence. We are having multiple reputed clients with us from Ladakh to Karnataka, Bangalore, Kalyan Silks, the Grand Dragon, JP Hotel, V-Mart, and many more. So let's just get back to the agenda of this meeting. I'm going to tell you about MIS report first. So MIS reports, we are having dedicated section of MIS reporting on EaseMy GST. Once you log in EaseMy GST, you will see in the right corner of EaseMy GST the dedicated section of EaseMy reporting, where we are having
21 MIS report. These reports are advanced, which is extra with from the raw data. Means the people who are using our software for reconciliation for GST filing, they're getting data. But advanced reporting are the advanced way where we are giving you our analysis of the data. We are providing the pivot table, the graph chart. Also, these reports are very helpful for the management and higher level of management. So let's discuss the key benefits and key features of these reports. These reports are very easy to download format. We can simply download this report in a single click. You don't have to log in government portal again and again with the different GSTs. We are having multiple GST. We can download multiple GST, multiple PAN in a single go. These reports are source agnostic in nature. The people, suppose if you are not using our services regularly, or if you have purchased ISMA-GST recently, these people also can take the benefit of MIS report. How? Because we are providing this report as per the file data also. So if you are not using ISMA-GST, there is also no worry. You can take the benefit of this as my MIS report, because we are fetching the details from government portal. These reports are comprehensive in nature. The comprehensive, that means we are providing multiple GST in a single report. This report, as I told you earlier, my colleague Ankit is going to show you the live product where you will get to see that we are having multiple graphs, pivot table, pie chart, which is very easy to understand. Also, we believe in compatibility. That's why we are having Microsoft Excel format, because accountants are very very habitual of Excel. So it will be useful for them. That's why these reports are in Microsoft Excel format. So let me tell you about the types of reports which we are offering. So the types of reports are, we are having 6 types of report. The first one is comparative report, and the second one written report. Third one is summary report. Fourth one is reconciliation report. Fifth one is analysis report, and sixth one is custom field report. So I'm going to explain you these reports one by one, and we are having multiple reports in these types. So let's start with first type 1, which is comparative report. Okay, so we are having 4 report in comparative report. Report number 1 and 10 is for file data versus 3B, GST1 uploaded data versus 3B. Report number 2 and 9 is 2B versus 3B and 2A versus 3B. Their outcome is, from the first report, report number 1 and 10, you can easily find the discrepancy between GST1 and 3B. Ideally, there should not be any difference, but sometimes we amend our GST1 in GST3B. For that, you can take corrective action through this MIS report. You will get to know month by month a difference of MIS report. You can check GST1 file data is showing 2.10 crore, but GST3B is showing 2.08 crore. You will get to know in which month this difference is coming. So these reports are very helpful for the auditors and higher management. Second, report 2nd and 9 is for 2B versus 3B, where we are getting both kinds of report. Suppose if you are still taking input as per 2A, and if you still want to reconcile your 3B with your 2A, you can go with 2A versus 3B. We understand your requirement, because some of our clients are having quarterly vendors, so they want to go with 2A. So we are having 2A versus 3B as well as 2B versus 3B. So the next type is type returns report. We are having again 4 reports in returns report. The report number 6 and 7 is for GST1 tax rate wise classification of outward supplies, where we are having both GST1 file as well as one uploaded. As I told you earlier, we are having both data. Means if you want to check, if you want data as per uploaded, you can. If you want to go with government portal data, if you want to check file data, we have that also. The next report 11 and 20 is for invoice level report, where we are having detailed summary wise invoice level report of GST1. For tax rate wise, we are having overview, where you will get to know how much tax rate wise basis of tax slab we are providing your sales data. Sometimes auditors wants their tax rate wise, and this is helpful to manage your
reconcile your ARP with your file data. So let's go on the third report, the type 3. Type 3 is summary report. In summary report also, we are having 3 reports. Report number 4, which is GSTR 3B summary report. In this report, we are providing you simply easy comparison between your books or GST for your GST annual return. You will get to know how much ITC you have claimed, how much is eligible, and how much is your details of your every section. The report number 5 is GSTR1 file summary report section wise. We are having invoice level report as well as summary report. Sometimes owners or higher management just want to know the file data summary. That's why we are providing you insight of section wise supplies based on your section B2B, B2C, and it will give you the overview how much supplies and goods you have made in per month, year, and even 3 financial year. Report number 15 is reconciliation summary report. This report is not for 2B or 2A reconciliation. This is whole reconciliation summary report, which is including ISD, import, credit note, every kind of reconciliation. Here also you will get section by section details. Okay, the report 4th is reconciliation report, which is very important for us because reconciliation is the key use of GST. Everyone requires reconciliation reports. So we are having 3 types of reconciliation report. Report number 13 is the 2-way RICO based reconciliation report, where we are providing your 2-way for multiple PAN and for multiple GST for 2 financial year. Report number 16 is 2P based reconciliation report, in which you will get to know in which month you have recorded that particular invoice and in which month you have marked this invoice in 3B. Report number 21, which is 2B reconciliation report. This report consider your reconciliation data of 2B. As you can see this pie chart, 64% is showing in match category, 17% is showing in value mismatch. This kind of pie chart you are going to see in the reports. Next, let's just go to the 5th type. This is analysis report, where we are having 5 reports. Report number 8, which is 3B ITC classification. This report gives you the net ITC, how much you have claimed, and breakdown of percentage wise your eligible ITC and available ITC and reclaimed ITC. Means how much how much amount you have reclaimed particular year and how much is eligible, and it will also show you the net ITC. The second report number 14, which is GSTR 2A analysis. This report provides you period-wide details of eligible ITC. Means it will show you the as per 2A. This report is going to show you as per 3B. So this will show you again the percentage breakdown of eligible ITC and ineligible ITC. Also, in addition, it is going to show you the percentage-wise breakdown of reason of an eligibility. Suppose ineligible, you will get to know at the end of the year, or where you want to see why you are not getting this ITC. You will get to know which part is the reason why you are not getting this ITC. Means or your counterparty has not filed their GSTR 1 or 3B. This reason you can get to know here. Report number 12, which is GSTR 2B counterparty wise report. Some of our clients require their vendor wise detail. There also we will get to know how much invoices is considered by one vendor. So you will get to know the reconciliation of counterparty wise. You will get to know 2B as per counterparty wise report. Report number 16, this is 26 AS report based on 3B. This report gives you annual turnover, which is based on 3B, which is very useful for 26 as part H. Okay, the next report is report number 3, which is GSTR 3B ITC gross utilization report. After filing 3B, the payment part, this report is going to show you the ledgers of your 3B filing, how much you have made the payment through cash, through ITC. The next type is type 6 custom field report. Here also we are having 2 reports. Report number 17 is GSTR 1U division by sale, where the person who are using our Genesis ERP, they can get benefit of to know our entry source data. Here we are having POS data, HO data, warehouse. You will get the entry source field here.
in the next report, report 18, which is GSTR1U plant-wise detail, this report is going to show you from which store you have made how much sale. Suppose we are having this 6 stores, sector 50. There is sector 15, 11% sales is made in sector 50, 8% sale is made in urban square. This report is also helpful for the auditors and higher management to see how much sale they are making in particular plant, in particular branch. So now I request to my Good afternoon, everyone. Thank you, Nishtha, for giving me this opportunity. Now I'm sharing my screen. Yes. I hope my screen is visible to all of you. Nishtha, can you confirm me? Yes, indeed. Okay. जैसा कि निष्ठा ने आपको बताया कि हमारे पास इज माई जीएसटी पे एमआईएस रिपोर्ट्स पे 21 रिपोर्ट्स अवेलेबल है। तो मैं आपको इज माई जीएसटी पे कैसे रिपोर्ट जनरेट्स होती है और कैसे हमने उस 6 रिपोर्ट्स को डिफाइन किया हुआ है वो मैं आपको इस माई जीएसटी पे करके बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम इज माई जीएसटी को जैसे ही लॉगिन करेंगे वैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर पे ये पहला डैशबोर्ड ओपन होगा और एक राइट हैंड साइड में हमारे पास सेक्शन बन के आएगा एमआईएस रिपोर्ट का। एमआईएस रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले 21 रिपोर्ट्स आर अवेलेबल हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे और ये रिपोर्ट्स आप मल्टीपल जीएसटी वाइज भी चेक कर सकते हैं और पर्टिकुलर आपको जीएसटी का चेक करना है वो भी कर सकते हैं और रिटर्न पीरियड वाइज भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होते हैं एमआईएस रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट आप जैसे ही अगर आपको रिपोर्ट नेम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हमने एक आई का बटन दिया हुआ है। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा उस रिपोर्ट का नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ रिपोर्ट और उस डेटा मतलब एमआईएस रिपोर्ट का सोर्स किया है हमने 1 और 3B में कंपैरिजन करके बताया हुआ है और उसका पर्पस एंड स्कोप क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। और ये लास्ट है हमारा पॉइंट टू नोट। तो एक रिपोर्ट मैं आपको जनरेट करके बताना चाहूंगा कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती है। पहला हम 1F3B कंपैरेटिव रिपोर्ट ले लेते हैं। ये रिपोर्ट हमारे पास जैसे ही मैंने जीएसटी को सिलेक्ट किया और मैं ये फाइनेंशियल ईयर वाइज डेटा निकाल लेता हूँ और जैसे ही मैं जनरेट बटन दबाऊंगा यहाँ हमारे पास नीचे एक रिपोर्ट हिस्ट्री बन के आएगी। ये रिपोर्ट हिस्ट्री में आपका ये बेनिफिट होगा कि ये किस पर्सन द्वारा रिक्वेस्ट प्लेस करी गई है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है, कंप्लीट स्टेटस हुआ है या कोई डेटा फाइल में एरर आया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपने मल्टीपल जीएसटी का निकाला है वो जीएसटी और किस मंथ का डेटा है वो आपको यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई होकर बताया जाएगा। और लास्ट जो है रिपोर्ट जनरेशन डेट एंड टाइम भी बताई जाएगी। लास्ट जो सेक्शन है हमारा एक्शन बटन का, इसमें 2 बटन दिए गए हैं। पहला होता है डाउनलोड का, अगर आपको इस रिपोर्ट को रीजनरेट करना है, अगर कोई एरर आ जाता है आप यहाँ से डायरेक्ट रीजनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिपोर्ट्स पे। हमारे पास 6 रिपोर्ट्स को हमने डिफाइन किया हुआ है और वो रिपोर्ट कैसे यूजफुल है आपके लिए वो मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम कंपैरेटिव रिपोर्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास कंपैरेटिव रिपोर्ट में 4 रिपोर्ट्स हैं। पहली रिपोर्ट है हमारे पास जीएसटीआर 2A वर्सेस 3B। ये रिपोर्ट मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये रिपोर्ट्स में हमारे पास जो जितनी भी 20 रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इजमाई पे, हमने मोस्टली सबसे पहला पेज इंडेक्स का ही रखा हुआ है कि सीरियल नंबर रिपोर्ट की नेम क्या है, किस सेक्शन वाइज हमने क्लैरिफाई करा हुआ है। और अगर मान लीजिए रिपोर्ट नेम हमारे आईटीसी फाइलिंग पीरियड वाइज हमने कंपैरिजन बताया है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हमने साथ में बताया हुआ है। अगर आपको डैशबोर्ड का चार्ट व्यू करना है तो आप यहीं से डायरेक्ट लिंक पेज पे क्लिक करते उसका एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट आप टेबल व्यू को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा है ऑर्गेनाइजेशन डैशबोर्ड, ये आपका मेन डैशबोर्ड है जो पाई चार्ट और बायोग्राफ के थ्रू हमने बताया हुआ है। इस रिपोर्ट्स में पहला जो हमारा यहाँ पे आपका लीगल पैन अगर आपके मल्टीपल जीएसटी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। किस फाइनेंशियल ईयर का हमने रिपोर्ट निकाला हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका मंथ, यहाँ पे अभी पूरे ईयर का डेटा है तो सारा सेलेक्ट है। अगर आपको मंथ वाइज भी डेटा देखना है तो पर्टिकुलर मंथ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर अप्रैल महीने का ही डेटा ओपन होगा और जैसे ही अगर आपको पूरे ईयर का देखना है तो आप सारा फिल्टर रिमूव कर देंगे। ये जो अभी ओपन है ये आपका पूरा ईयर का डेटा है।
और इसमें जो है पहला जो हमारा कंपैरिजन है ये आईटीसी अवेलेबल 2A के बेस पे है और ये फाइलिंग पीरियड वाइज कंपैरिजन बताया है। और ये हमने जो ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं बार ग्राफ में, ये आपका 2A का डेटा शो हो रहा है और 3B का, तो इसमें आपका ये कंपैरिजन करके बताया हुआ है। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा जीएसटीआर 2A आईटीसी फाइनेंशियल ईयर वाइज कंपैरिजन कर रहा है, ये सिर्फ 2A का है। और इसके जस्ट आगे जो है हमारा यहाँ जीएसटीआर 3B आईटीसी फाइनेंशियल ईयर वाइज कंपैरिजन है। तीसरा जो सेक्शन हमारे पास पाइवट चार्ट का है, जो मैंने डैशबोर्ड पे बताया हुआ है पाई चार्ट और बार ग्राफ के थ्रू, उसको सेम मैंने पाई चार्ट में करके बताया हुआ है। पहला हमने आईटीसी अवेलेबल फाइलिंग पीरियड वाइज फाइनेंशियल ईयर का, अगर आपको फिल्टर लगाना है लीगल पैन का, जीएसटी का, यहाँ आपको मंथ वाइज आपको 2A का डेटा मिल जाएगा और 3B का मिल जाएगा। यहाँ आपका 2A आईटीसी फाइनेंशियल ईयर वाइज आपका पूरे साल भर में 2A में कितना डेटा आया हुआ है और आपका 3B में कितना डेटा आया हुआ है फाइनेंशियल ईयर वाइज। और नेक्स्ट जो लास्ट जो सेक्शन है हमारा ओवल और कंपैरिजन आईटीसी एज पर 2A आईटीसी एज पर 3B कंपैरिजन में, ये आपका है। लास्ट जो सेक्शन है हमारा डेटा शीट, इस मेन जो डेटा जो हमारा एमआईएस रिपोर्ट जनरेट हुआ है वो इस डेटा शीट के बेस पे पूरा बना हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट डेटा शीट से एक्सेस करना, चेक करना कौन सा क्या रिपोर्ट है मेरा, तो आप डेटा शीट को भी एक्सेस कर पाएंगे। ये तो हो गया हमारा पहला रिपोर्ट जीएसटीआर 2A वर्सेस 3B कंपैरेटिव रिपोर्ट। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी रिपोर्ट पे ले चलता हूँ। यहाँ है जीएसटीआर 1F वर्सेस 3B कंपैरेटिव रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मेनली क्या है कि जो आपने फाइलिंग करी है और जो आपने 3B में सेल्स दिखाया हुआ है उसके बीच में कंपैरिजन करके बताता है ये रिपोर्ट। ठीक है, तो ये पहला पेज जो हमारा, यहाँ आपको इंडेक्स मिल जाएगा। पहला सेक्शन मिसमैच स्टेटस एज पर टोटल लाइबिलिटी टैक्स की, अंडर रिपोर्टेड अगर आपके टॉप 10 जीएसटी है, आपने अंडर रिपोर्टेड 3B है, कोई टैक्स लाइबिलिटी ओवर है, ये हमने आपको सेक्शन इंडेक्स में बताया हुआ है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे यहाँ जो आपका जो ऊपर जो डेटा दिख रहा है ये आपका जीएसटीआर 1 पूरे ईयर का टैक्सेबल वैल्यू और 3B की टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स अमाउंट और जीएसटी 3B की टोटल टैक्स अमाउंट। और ये जो नीचे जो कंपैरिजन है टैक्सेबल वैल्यू कंपैरिजन करके हमने बताया हुआ है कि किस महीने में आपने कितना ज्यादा एक्सेस करा हुआ है। यहाँ पे आपका टोटल टैक्स अमाउंट का कंपैरिजन मिल जाएगा। यहाँ आपको टॉप 10 जीएसटी का टैक्स लायबिलिटी अंडर रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 3B एंड नेक्स्ट जो है कि टैक्स लायबिलिटी ओवर रिपोर्टेड जीएसटीआर 3B में जो आपने लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं पाई चार्ट पे। पाई चार्ट में भी हमने सेम उसका मैच मिसमैच एज पर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है, किस मंथ में आपने 3B ज्यादा दिखा दी है, किस मंथ में आपने कम दिखाई है, किस मंथ में आपका डेटा पूरा मैच जा रहा है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है हमारा टॉप 10 जीएसटी है टैक्स लायबिलिटी अंडर रिपोर्टेड जो 3B में है। और यहाँ जो सेक्शन है हमारा वो टॉप 10 जीएसटी ओवर रिपोर्टेड जो आपने 3B में क्लेम किया है किस महीने में। और ये जो नेक्स्ट है हमारा ये आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू पूरा फाइनेंशियल पीरियड वाइज हमने बताया हुआ है कि आपका 1 में आपका कितना है और 3B में आपने कितना सेल्स दिखाया हुआ है। और जो लास्ट है हमारा मतलब सेक्शन मतलब टोटल टैक्स अमाउंट का हमने कंपैरिजन करके बताया, सेल्स में आपने क्या दिखाया है और 3B में आपने कितना बताया हुआ है। और लास्ट जो सेक्शन मतलब सप्लाई टाइप वाइज वैल्यू कंपैरिजन हमने करके बताया हुआ है। अदर सप्लाईज के जो भी हैं आपने जो R1 में दिखाया है वही सेम आपने 3B में भी उतनी ही अमाउंट मतलब कितना अमाउंट आपने यहाँ शो करके बताया हुआ है। लास्ट सेक्शन हमारा डेटा शीट, ये आपका डेटा शीट है जो 1F और 3B का कंपैरेटिव रिपोर्ट करके बताएगा। अगर आप इस रिपोर्ट को डेटा एक्सेस करना है भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट जो कंपैरेटिव रिपोर्ट का ही पार्ट है। अभी ये जो रिपोर्ट है 2B वर्सेस 3B कंपैरेटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें आपका मेनली क्या होता है कि 2B में कितना आपको इनपुट मिल रहा है और कितना आप 3B में क्लेम कर रहे हैं और क्या इसमें आप किस महीने में आपका 3B मतलब 2B में जितना है आप 3B में भी उतना ले रहे हैं, किस महीने में आप एक्सेस क्रेडिट टेकन इन 3B में ज्यादा ले रहे हैं और लेस क्रेडिट टेकन इन 3B में किस महीने आपने कम लिया है क्रेडिट 3B में। और यहाँ आपके टॉप 10 जीएसटी का ओवरव्यू दिख जाएगा और जो एक्सेस क्रेडिट टेकन है और यहाँ आपको लेस क्रेडिट टेकन का रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन है हमारा कैटेगरी वाइज आईटीसी कंपैरिजन है। यहाँ भी हमने 2 कलर्स में डिफाइन करा हुआ है। ग्रीन कलर जो आईटीसी अवेलेबल है और 3B में कितना आईटीसी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है यहाँ आपको ग्रुप वाइज कंपैरिजन आईटीसी का मिलेगा जो कि पार्ट है एक्सक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और दूसरा है एक्सक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का।
अब नेक्स्ट सेक्शन टैब्स पे आ जाते हैं, पाई चार्ट पे। यहाँ सेम चीज जो और डैशबोर्ड पे हमने दिखाया हुआ है उसी को हमने यहाँ पे पाई चार्ट में आपके हेल्पफुल के लिए यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। पहला जो हमारा मैच मिसमैच स्टेटस है, एज पर नेट आईटीसी अवेलेबल कितना है, और दूसरा टॉप 10 एक्सेस क्रेडिट, लेस क्रेडिट टेकन। नेक्स्ट है कैटेगरी वाइज आईटीसी कंपैरिजन, ग्रुप वाइज आईटीसी कंपैरिजन, और जो मतलब आईटीसी अवेलेबल फाइलिंग पीरियड वाइज, नेट आईटीसी रिवर्सल इफेक्ट इफ इज कंसीडर, तो वो आपको यहाँ 7 टेबल में दिख जाएगा, आईटीसी रिवर्स 8 टेबल में। मतलब ये आपके टोटल 10 रिपोर्ट्स हमने डिफाइन करके बताया हुआ है। और जो लास्ट सेक्शन सारी रिपोर्ट की तरह यहाँ आपका मेन डेटा शीट में हमने और क्लैरिफिकेशन में बताया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट्स पे। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी कंपैरेटिव रिपोर्ट का लास्ट पार्ट है, 1U और GSTR 3B कंपैरेटिव रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 1U, यू मींस जो आपने अपलोड करी है ईज माई जीएसटी पे सेल्स का डेटा, और जो आपने 3B फाइल करी है उसके बीच में कंपैरिजन करके बताएगा। जैसे ही मैंने आपको 1F में बताया है सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ क्या हुआ, डेटा आपको अपलोड बेस पे बताएगा। यहाँ भी देखिए 1F की तरह डैशबोर्ड है मैच मिसमैच का, किस मंथ आपका 3B मैच आपने क्लेम किया है, किस महीने आपने अंडर रिपोर्टेड किया है, किस महीने आपने 3B शो मोर लायबिलिटीज दिखाई हुई है। यहाँ आपको सेम टॉप 10 जीएसटी टैक्स लायबिलिटी अंडर रिपोर्टेड जीएसटीआर 3B, और टैक्स लायबिलिटी ओवर रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 3B। सेम यहाँ पे नीचे जो है टोटल टैक्सेबल वैल्यू का कंपैरिजन करके बताया हुआ है फाइलिंग पीरियड वाइज हमारा। यहाँ सेम रिपोर्ट की तरह दो कलर में हमने डिफाइन करा हुआ है। पहला है 1U जो आपने अपलोड किया है उसकी टैक्सेबल वैल्यू दिखाएगा, और 3B में टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया। विद अमाउंट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और यहाँ आपको मंथ का मिल जाएगा। लास्ट मतलब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा टोटल टैक्स का अमाउंट कंपैरिजन है। इसमें क्या होगा कि आपको टोटल टैक्स अमाउंट जो आपने अपलोड किया है उसका, और जो 3B में आपने टोटल टैक्स दिखाया है वो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाया जाएगा। और सप्लाई टाइप जैसे टैक्सेबल वैल्यू कंपैरिजन, अदर सप्लाई अदर्स में क्या है, अगर आपके कोई भी अदर्स एग्जाम्प्ट के हैं नॉन जीएसटी के आपने दिखाए होंगे तो वो आपका यहाँ पे एज इट इज बार ग्राफ करके शो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ फिर फाइनेंशियल ईयर वाइज टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर वाइज, यहाँ भी सेम आपका 3B, यहाँ आपका 1U, दो हमने अलग अलग डिवाइड करके बताया हुआ है। और इसके बाद हमारा क्या है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट में हमने किस महीने आपका 3B जो सेम आपका 1F जो आप सेम है ना, सेम 1U हमने यहाँ सेम रिपोर्ट्स की तरह कंपैरिजन करके बताया हुआ है 10 टेबल में, 9 टेबल में। अब इसके बाद आ जाते हैं लास्ट डेटा शीट। यहाँ आपको लीगल पैन, डेटा टाइप, 1U में कितने टैक्सेबल वैल्यू, 3B में कितना है, उनके बीच में का क्या डिफरेंस है, 1U में आपने क्या अमाउंट दिखाया है, 3B में कितना आपने दिखाया हुआ है, उसके बीच का डिफरेंस, और वहां पे टैक्स रेट वाइज कंपैरिजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये तो हमने अभी तक जो बात करी है ये हो गया आपका जो 4 रिपोर्ट है वो कंपैरेटिव रिपोर्ट की है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट जो रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट हमारे पास मेनली अगर देखा जाए तो 2 टाइप की है। एक होता है 1U इनवॉइस लेवल रिपोर्ट, और दूसरा जो है 1F टैक्स रेट वाइज कंपैरिजन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट हमने एमआईएस रिपोर्ट में क्यों अलग सेक्शन करके बताया हुआ है, क्योंकि आप ईज़माई जीएसटी से फाइलिंग करते हैं तो व्यू सेक्शन से भी आप एक्सेस कर पाएंगे, तो ये हमने अलग क्यों करा हुआ है। आप जो व्यू सेक्शन में एक्सेस करेंगे वहां आपको ड्रॉ डेटा मिलेगा जो आपने एज इट इज अप्लाई किया है, नॉन जीएसटी एग्जाम टैक्स जो भी होगा वो आपको इनवॉइस लेवल वाइज दिख जाएगा, लेकिन वहां आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, मैनुअल कैलकुलेशन का एफर्ट लगेगा, ये सारी चीजें लगेगी। यहाँ हमने एमआईएस रिपोर्ट में जो भी आपने फाइलिंग करी है इनवॉइस लेवल रिपोर्ट वाइज, यहाँ आपको कराया और फिल्टर डेटा यहाँ पे मिलेगा। सेम सारी रिपोर्ट के आप सारे रेट इंडेक्स किस हमारे पास सेल्स दिखाते हैं सारे आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो सेक्शन है रिटर्न समरी का, यहाँ पे देखिए ये आपको जो मैनुअल कैलकुलेशन आप रॉ डेटा में करेंगे वो सेम हमने यहाँ पे करके बताया हुआ है, और ये डेटा ईयर वाइज रिटर्न पीरियड वाइज पूरा है, और इनवॉइस काउंट भी हमने साथ ही साथ बताया हुआ है। और अब इसके आगे जो नेक्स्ट टैब है यहाँ अब आ जाते हैं B2B। इस सेक्शन में सिर्फ B2B का ही डेटा होगा, अलग सेक्शन का डेटा यहाँ पे नहीं होगा।
B2B अमेंडमेंट, B2CL, B2CLA, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट नोट, जो भी आपने सेल दिखाई होगी वो सारी आपको विद इन वन एक्सेल शीट में मिलेगी विदाउट कोई एफर्ट मैनुअल कैलकुलेशन। ये तो बात होगी 1F इनवॉइस लेवल रिपोर्ट की। अब देखिए ये सेम रिपोर्ट हमने 1U की 1U इनवॉइस लेवल रिपोर्ट भी रखी है। ये एफ जो आपने फाइलिंग कर दी, और ये रिपोर्ट जो 1U है वो रिपोर्ट है जो ईज़माई जेस्टी पे आपने अपलोड करी है, उसके बीच की है। तो ये जो रिपोर्ट है टेबल सब कुछ सेम रहेगा, बट फर्क कितना है 1F और 1U का। अब आ जाते हैं हमारे पास टैक्स रेट वाइज कंपैरिजन। ये हो जाता है आपका, मैं ओपन कर लेता हूँ 1U। सेम सारी रिपोर्ट की तरह पहला इंडेक्स, यहाँ आपको कंसोलिडेटेड टेबल ऑफ ऑल टैक्स रेट्स लाइव्स मिलेंगे, टेबल की डिस्क्रिप्शन, डायरेक्ट टेबल का एक्सेस का लिंक, सारे रेट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, किस रेट में आपने कौन सी सेल्स दिखाई हुई है। नेक्स्ट सेक्शन जो है टेबल, ये आपका मेन है, ये आपका लीगल पेन, टैक्स पेयर मल्टीपल अगर जीएसटी है वो, फाइनेंशियल फाइलिंग पीरियड वाइज। अब ये जो है, ये जो डेटा आपको शो हो रहा है ये पूरे ईयर का शो हो रहा है, जो मैंने देखिए ओवरऑल टैक्स रेट वाइज टैक्सेबल वैल्यूज एंड टैक्स लायबिलिटी कंसोलिडेटेड फॉर द फिल्टर अप्लाइड, जो मैंने ऊपर अप्लाई करा है उसका बता रहा है। अब इसके जो नीचे है यहाँ मंथ वाइज टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स लायबिलिटी, वो आपको यहाँ पे किस मंथ में आपका टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी आपकी कितनी रही, सीजीएसटी आपकी कितनी रही, मंथ वाइज यहाँ पे हमने बताया हुआ है। अब आपने जीरो रेटेड में कोई फाइलिंग करी है, नील नॉन जीएसटी एग्जम्प्ट, ये आपको यहाँ पे टेबल वाइज हमने करके बताया हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये रिपोर्ट मैंने ओपन करी है, यहाँ हमारे पास 18% पे हमने सेल दिखाई हुई है। तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज आपको सारी डिटेल्स, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी, सीजीएसटी क्या रही है वो आपको यहाँ पे पूरी दिख जाएगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लास्ट सेक्शन डेटा शीट पे। डेटा शीट इसी के बेस पे हमने जो टेबल डिफाइन करी है वो इस डेटा शीट के बेस पे करी है। यहाँ आपको टोटल टैक्स पेयर जीएसटी मल्टीपल है, लीगल पैन लीगल पैन नेम, टैक्स रेट जो भी आपने दिखाई हुई है सेल्स में, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी अमाउंट, और मतलब टैक्स रेट, टोटल टैक्स भी हमने लास्ट में दिखाया हुआ है। ये तो बात हो गई 1U जो आपने ईज़माई जेएसटी पे अपलोड करी है। अगर आपने 1F, ये जरूरी नहीं है कि आपने ईज़माई जेएसटी से फाइलिंग करे तो ही आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको 1F की रिपोर्ट देखनी है जो आपने फाइलिंग कर दी है, आप उस रिपोर्ट को भी डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको भी ये रिपोर्ट ओपन करके दिखाना चाहूंगा। ये रिपोर्ट सेम देखिए, सेम 1U की तरह है, इंडेक्स पेज, ऑर्गेनाइजेशन डैशबोर्ड, मंथ वाइज टैक्सेबल, यहाँ आपका टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, तीसरा है हमारा टेबल, यहाँ टैक्स रेट वाइज हमने क्लैरिफिकेशन करके बताया हुआ है। लास्ट 1F जो आपने फाइलिंग कर दी है उसके बेस पे ये डेटा शीट है। ये हो गई हमारी रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट के बाद जो थर्ड रिपोर्ट है समरी रिपोर्ट, जो ज्यादातर क्लाइंट्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें समरी रिपोर्ट की आवश्यकता है। जो 3B की समरी रिपोर्ट, आपको 3 टाइप की रिपोर्ट्स है, और 1F सेक्शन वाइज समरी रिपोर्ट, रिकंसिलेशन की समरी रिपोर्ट, वो हमने बताई हुई है। तो चलिए पहली रिपोर्ट हम ओपन कर लेते हैं, रिपोर्ट नंबर 4। ये हमारी समरी रिपोर्ट, इसमें हमने आपकी जो भी आपने साल भर में 3B दिखाई है, फाइलिंग करी है, उसका हमने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करके बताया हुआ है। यहाँ पे आपका डिटेल आउटवर्ड जो आपने सेल्स 3.1 में टेबल में दिखाई हुई है, 4th, 5th, 6th मंथ है, मंथ वाइज यहाँ पे हमने क्लैरिफिकेशन करके दिखाया हुआ है। और नील एग्जाम्प्ट का कितना है आपका, नॉन और जीरो रेटेड का कितना है, 3B आपने दिखाई हुई है। सेम जो 3B आप फाइलिंग करते हैं उसका यहाँ पे हमने क्लैरिफिकेशन करके पूरे वो ईयर का डेटा हमने डिवाइड करके यहाँ पे बताया हुआ है। एलिजिबल आईटीसी का भी आपका 4 टेबल जो आप दिखाते हैं वो भी आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो भी 3B में टेबल होती है वो हमने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करके डेटा को दिखाया हुआ है। अब आ जाते हैं लास्ट डेटा शीट। डेटा शीट में देखिए टेबल हेडर, डेट आउटवर्ड चार्ट, अप्लाई, आइटम डिटेल्स क्या है, टोटल टैक्स वैल्यू मेरी क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, स्टेट टैक्स, मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी जो भी आपकी टैक्स है वो आपको यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। अब दूसरी रिपोर्ट हमारी है जीएसटीआर 1F सेक्शन वाइज सेल्स समरी रिपोर्ट है, जो आपने फाइलिंग कर दी है। ये एक बार ओपन कर लेता हूँ।
ये जो 1F सेक्शन वाइज समरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बेसिकली बताया क्या गया है कि जितनी भी आप फाइलिंग करते हैं, मतलब एक मिनट ग्लिच, यहाँ जो आपने साल भर की सेल दिखाई हुई है कंसोलिडेटेड पूरा, पहला जो सेक्शन वाइज पूरी आपको टेबल नंबर 4 में आपने कितना सेल दिखाया हुआ है, 9 में अमेंडमेंट की कोई अगर B2B की इनवॉइसेस आप करते हैं वो सारा आपका दिखाया गया है। अनरजिस्टर्ड आपने B2CL की कोई सेल दिखाई हुई है, टेबल नंबर 9 में जो अमेंडमेंट की B2C लार्ज कस्टमर की सेल दिखाई हुई है, वो सेम जो आप फाइलिंग करके गवर्नमेंट पोर्टल पर जो टेबल दिखता है वो सारा रिपोर्ट आपको इस MIS रिपोर्ट में पहले सेक्शन में दिख जाएगी। इसके बाद आपकी टोटल लायबिलिटी भी आपको यहीं पे दिख जाएगी। और जो इसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो सेक्शन है B2B सेक्शन वाइज हमने बताया हुआ है कि B2B मतलब B2B अमेंडमेंट, B2B की सेल आपकी कितनी रही है वो हमने यहाँ पे करके बताया। 9 में अगर आपने कोई अमेंडमेंट करी हुई है, उसकी इनवॉइस वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, IGST का अमाउंट क्या है, वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद हमने उसके बीच का डिफरेंस का भी एक अलग से कॉलम करके दिखाया हुआ है MIS रिपोर्ट में। इसके बाद जो टेबल 4 में आपको क्या आपने B2B की सेल दिखाई है हर मंथ वाइज, वो हमने बताया हुआ है। क्रेडिट नोट का ऐसे ही हमने सेक्शन वाइज यहाँ पे डिवीजन कर दिए हैं, क्रेडिट नोट का अलग, एसेट अलग, एक्सपोर्ट अलग, और लास्ट में हमने मेन डेटा शीट रखा है जिसके बेस पे हमने आपको सेक्शन वाइज समरी दिखाई है डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, जो अगली रिपोर्ट है हमारी रिकंसिलिएशन समरी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपके लिए मतलब जो आप रिकंसिलिएशन करते हैं टू बी और अपने परचेज के डेटा के साथ, उसके बेस पे ये रिपोर्ट बताई गई है। पहला जो सेम सारे रिपोर्ट की तरह इंडेक्स है हमारे पास, और यहाँ पे आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको यहाँ दिख जाएगा कि 2P में मेरा कितना मैच हुआ है डेटा, कितना मेरा वैल्यू मिसमैच है, और परचेजर ओनली कितना है। ये आपको बार ग्राफ मतलब पाई चार्ट में आपको परसेंटेज वाइज ब्रेकअप करके बताया गया है। और यहाँ जो आपका सेक्शन है ये 2A का आपका 2A का टोटल टैक्स करके यहाँ पे बताया गया है कि इसमें आपका कितना मैच हुआ है, कितना वैल्यू मिसमैच है, सप्लायर ओनली कितना है, ये आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में बताया गया है। अब आ जाता है पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल में हमने आपको GSTR 2P एज पर जी रिकंसिलिएशन कैटेगरी टोटल टैक्स की मैच में आपका कितना रहा, वैल्यू मिसमैच में कितना रहा, परचेजर ओनली में आपने हमारा टोटल अमाउंट कितना रहा। इसके बाद सप्लायर डेटा एज पर जी टोटल टैक्स उसका सप्लायर का कितना रहा, मैच हुआ, वैल्यू मिसमैच कितना हुआ, और सप्लायर ओनली में हमने सप्लायर का डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपको ओवरऑल रिकंसिलिएशन रिजल्ट समरी 2P बेस में कि आपका रिकंसिलिएशन कैटेगरी भी आपको यही दी जाएगी, परचेजर टैक्सेबल, परचेजर का टैक्स अमाउंट, ये आपका पूरा जो है वर्किंग परचेजर का है। इसके जस्ट आगे यहाँ आपको दिख जाएगा सप्लायर का डेटा। ये हो गया आपका रिकंसिलिएशन की समरी रिपोर्ट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारी मेन रिकंसिलिएशन रिपोर्ट, चौथी नंबर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमने थ्री टाइप्स की रिपोर्ट हमारे पास है। पहली रिपोर्ट है यहाँ पे GSTR 2B वर्सेस रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। ये क्या होती है कि 2B में आपका कितना डेटा है और परचेजर में आपका कितना मैच हो रहा है, कंपैरिजन आपको करके बताया हुआ है। रिकंसिलिएशन किस कैटेगरी में डेटा आपका दिखाया गया है, रिकंसिलिएशन इनवॉइस की डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। पहली जो सेक्शन है हमारा ITC समरी 2B, ये आपको 2B की समरी का पूरा टेबल आपको यहाँ दिखाया गया है। रिकंसिलिएशन की आपका टेबल यहाँ पे आपको बताया गया है सेक्शन वाइज, ये होगा ITC अवेलेबल का। इसके बीच में आपको यह भी दिख जाएगा कि इन दोनों के बीच जो रिकंसिलिएशन करके रिजल्ट निकला है उसके बीच के साइड में डिफरेंसेस करके बना हुआ है। यहाँ अलग से 3 हैं वो आपके ये ITC अवेलेबल का है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है ITC नॉट अवेलेबल, अगर ऐसा कुछ इनवॉइस है जो आपने ITC उस पर नहीं मिला है, इनपुट नहीं क्लेम कर सकते हैं रिकंसिलिएशन का, वो भी हमने यहाँ पे करके बताया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन रिकंसिलिएशन रिजल्ट समरी। ये आपको पाइवट चार्ट के थ्रू बताया गया है ITC एज पर इनएलिजिबल कितने इनवॉइस हैं, कितने नहीं है, सप्लाई डॉक्यूमेंट स्टेटस, कोई अगर अमेंड करा हुआ है किस पार्टी ने
वो आपको ओ और आर करके यहाँ पे डिफाइन होगा। रिवर्स चार्ज की कोई इनवॉइसेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैटेगरी क्या है, परचेजर फाइलिंग पीरियड क्या है, सप्लायर का आईजीएसटी क्या है, टोटल सप्लायर का टोटल टैक्स कितना बन रहा है, हमारा क्या परचेजर में है और हमारी क्या टोटल टैक्स हम बन रहा है, वो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया गया है। अब जो लास्ट जो सेक्शन है रिकॉन इनवॉइस डिटेल, इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी काउंटर पार्टी वाइज, काउंटर पार्टी का नेम, फाइलिंग करी है, पार्टी ने नहीं करी है, उसका क्या कैटेगरी रहा है, यूजर एक्शन, सप्लाई फाइनेंशियल ईयर, फाइलिंग पीरियड वाइज, डेटा, इनवॉइस टाइप, B2B क्रेडिट नोट, वो सप्लायर इनवॉइस नंबर, परचेजर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस की क्या डेट है, मेरी इनवॉइस डेट क्या है, वो आपको यहाँ पे पूरा आपको इस डेटा शीट में क्लैरिफिकेशन के साथ बताया हुआ है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारे पास रिकंसिलिएशन समरी रिपोर्ट की, ये है आपका GSTR 2B काउंटर पार्टी वाइज रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आपको बेसिकली एग्रीगेट मतलब B2B काउंटर पार्टी वाइज आपकी क्या डिटेल है, कितना ओरिजिनल वैल्यू है, कितने वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है पार्टीज का, वो हमने यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अगर मल्टीपल पार्टीज हैं तो अगर किसी एक पार्टी का भी डेटा आपको यहाँ पे देखना है तो आप एक पार्टी का भी डेटा उस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको पूरी पार्टीज का देखना है कितनी पार्टीज का क्या वैल्यू रही है तो आप यहाँ पे सारी पार्टीज का भी देख सकते हैं। यहाँ फिर नेक्स्ट सेक्शन है ओवरऑल एग्रीगेट फाइनेंशियल पीरियड वाइज, उसके बाद ओरिजिनल इनवॉइस, उसके बाद ओरिजिनल इनवॉइस की क्रेडिट नोट की वैल्यू उस पार्टीज की कितनी है, यहाँ देखिए पार्टी का नेम और पार्टी का टोटल टैक्सेबल IGST अमाउंट, ये सारा आपको इस डेटा शीट में मिल जाएगा। ये आपका काउंटर पार्टी GSTR 2B काउंटर पार्टी वाइज रिपोर्ट है। और लास्ट सारी रिपोर्ट की तरह ये आपको फाइलिंग पीरियड वाइज GST किस GST का डिटेल है, लीगल पैन नेम, आपकी काउंटर पार्टीज के नेम, डिस्क्रिप्शन क्या रहा, आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या रही और IGST अमाउंट क्या रहा, ये आपको सारी इस रिपोर्ट में मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे पास GSTR 2B रिकंसिलिएशन, जो भी आपने ईज़माई GST पे रिकंसिलिएशन करा होगा अपने परचेज डेटा के साथ, उसका यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। बट है क्या, हमने दो रिपोर्ट्स को अलग करके यहाँ पे बताया हुआ है। ये रिपोर्ट आप रिकंसिलिएशन जब करते होंगे ईज़माई GST पे तो वहां भी आपको मिल जाती होगी, लेकिन वहां पे आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहाँ आपको सारी कैलकुलेशन के साथ डेटा मिल जाएगा। जैसे ही मैंने रिकॉन रिजल्ट समरी पे क्लिक किया, टैक्स पेयर GST क्या है और काउंटर पार्टी नेम, काउंटर पार्टी का GST और परचेजर टैक्सेबल उस पार्टी का कितना रहा, टैक्स सप्लायर में कितना दिखाया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको इसी रिपोर्ट में मिल जाएगा। परचेजर का क्या है और टोटल टैक्स के बीच में मेरा क्या डिफरेंस है, वो भी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। ये हमारी होगी पहली शीट काउंटर पार्टी वाइज रिकंसिलिएशन। लास्ट जो सेक्शन है रिकॉन इनवॉइस डिटेल, अगर आपको इनवॉइस डीपली देखना है कि किस पार्टी का मेरा इनवॉइस है क्या और परचेजर में कितने इनवॉइस नोट नंबर है, कितना कौन सी इनवॉइस डेट है, किस कैटेगरी में वो इनवॉइस रिकंसिलिएशन के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, B2B का इनवॉइस है, कोई क्रेडिट नोट है, कोई अमेंडमेंट की इनवॉइसेस है, वो सारी आपको इस रिपोर्ट में दिख जाएगी। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है एनालाइज रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट। इसमें आपको क्या है कि आपको डेटा एनालाइज ITC, पहले जो रिपोर्ट है बेसिकली 4 रिपोर्ट है हमारे पास, ITC क्लासिफिकेशन, ITC एनालाइज रिपोर्ट, ITC क्रॉस यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो आप लेजर में 3B फाइल करते हैं, उसके बाद जो लास्ट है 26 AS रिपोर्ट, ये आपका GSTR 3B के बेस पे आपका टर्नओवर का रिपोर्ट बताता है। तो चलिए पहली रिपोर्ट एनालाइज रिपोर्ट ओपन कर लेता हूं मैं। इस रिपोर्ट में बेसिकली जैसे ही मैं इस रिपोर्ट को ओपन करता हूं, सारी रिपोर्ट्स की तरह आपका इंडेक्स, आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज ब्रेकअप ऑफ नेट ITC अवेलेबल, रिवर्स ITC इनएलिजिबल का हमने ब्रेकअप करके इस रिपोर्ट में बताया हुआ है। देखिए जैसा ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीगल बैन नेम्स, फिल्टर सारे रिपोर्ट के मोस्टली हमारे सेम ही है, बस जो है डिफरेंस वो आपका परसेंटेज वाइज पाई चार्ट को हमने ब्रेकअप करके बताया हुआ है। जैसे ये परसेंटेज वाइज ब्रेकअप है नेट ITC अवेलेबल, ITC रिवर्स, इनएलिजिबल और ITC रिक्लेम का। ये जो आप बार ग्राफ पाई चार्ट देख रहे हैं, इसमें हमने ब्लू कलर में जो आपको 70% जो डेटा है ITC अवेलेबल का है, ITC में कितना रिवर्स किया है वो यहाँ पर 3% में दिख रहा है। ITC इनएलिजिबल कितना है, 27% ITC हमारी इनएलिजिबल इस रिपोर्ट में।
उसके बाद हमने जो पाई चार्ट में दिखाया है उसको हमने मंथ वाइज क्लैरिफिकेशन करके इस रिपोर्ट में दिखाया हुआ है, जो मेनली अगर देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 4 कलर में डिवाइड करके बताया हुआ है। ब्लू कलर में नेट आईटीसी अवेलेबल मंथ वाइज क्या है, आईटीसी किस मंथ में मैंने रिवर्स करा है और किस महीने मैंने उस जो रिवर्स करा है उसको रिक्लेम किया है, कितना मेरा किस मंथ में आईटीसी इनएलिजिबल दिखाया हुआ है, वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में मिल जाएगी। इसके बाद जो आ जाते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में परसेंटेज वाइज सेम उसी चीज को हमने ब्रेकअप करके दिखाया हुआ है। नेट आईटीसी का टोटल टैक्स अमाउंट मेरा कितना है, आईटीसी रिवर्स का कितना है, इनएलिजिबल का कितना है, उसके बाद मैंने ग्रैंड टोटल का एक अमाउंट डाल दिया है इस रिपोर्ट में। दूसरी जो सेक्शन है हमारी फाइलिंग पीरियड वाइज, नेट आईटीसी अवेलेबल, नेट आईटीसी रिवर्स, आईटीसी इनएलिजिबल कितना रिक्लेम किया है, वो हमने यहाँ पे आपको फाइलिंग पीरियड वाइज दिखाया हुआ है और यहाँ हमने डेटा को अलग अलग शो करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ थर्ड रिपोर्ट जो है हमारी ओवरऑल आईटीसी अवेलेबल, ये आपका फाइलिंग पीरियड वाइज है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आईटीसी रिवर्स वाइज, रिवर्स फाइलिंग पीरियड वाइज है। इसके बाद फिफ्थ जो हमारा सेक्शन इनएलिजिबल एंड रिक्लेम फाइलिंग पीरियड वाइज, वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब मेन हम आ जाते हैं डेटा शीट। इस डेटा शीट के थ्रू हमने ये बार ग्राफ मतलब ये डैशबोर्ड तैयार किया है, कितना हमारा इनएलिजिबल है, कितना हमने किस मंथ में रिवर्स करा है, कितना हमें ऑल अदर आईटीसी मिल रहा है, ये सारा ब्रेकअप करके हमने इस रिपोर्ट में दिखाया हुआ है। डेटा टाइप भी आपको दिख जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कोई अमाउंट अगर आपने दिखाया होगा वो भी, और किस में देखिए अभी आपका जो ऑल अदर आईटीसी में आपने वैल्यू दिखाई है तो वो सेम उसका आईजीएसटी सीजीएसटी कितना है और टोटल टैक्स मेरा कितना बन रहा है वो आपको यहाँ पे 3B आईटीसी क्लासिफिकेशन में दिख जाएगा रिपोर्ट नंबर 8 में। अब नेक्स्ट रिपोर्ट पे हम आ जाते हैं जो कि हमारा जीएसटीआर 2 आईटीसी एनालाइज रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट है ये आपके लिए। इसमें हमारा क्या है, परसेंटेज वाइज ब्रेकअप करके हमने बताया हुआ है एलिजिबल इनएलिजिबल का। पहले हम पाई चार्ट पे आ जाते हैं। ब्लू कलर में 93% एलिजिबल आईटीसी हमें मिल रहा है और इनएलिजिबल हमें 7% पूरे साल भर में हमें मिल हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दूसरे पे आ जाते हैं कि ब्रेकअप ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। इनएलिजिबल आईटीसी को हमने किन कारणों से हम इनएलिजिबल हैं उस इनपुट को क्लेम करने में, वो भी हमने बताया हुआ है। पहला जो है हमारा काउंटर पार्टी फाइलिंग स्टेटस जिन्होंने नहीं करी है उनकी वजह से, प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट होने के कारण, और लास्ट जो हमारा आरसीएम जिन्होंने आरसीएम दिखाया हुआ है। अब नीचे वाला जो सेक्शन है हमारा इनएलिजिबल, एलिजिबल एंड इनएलिजिबल फाइलिंग पीरियड वाइज, हमें दो डेटा हमने 2 कलर में डिवाइड करा हुआ है। पहला जो हमारा है ब्लू कलर में, जो हमने एलिजिबल आईटीसी मंथ वाइज हमने दिखाया हुआ है, किस मंथ में हमने कितना दिखाया हुआ है, और इनएलिजिबल हमारा कौन से मंथ में कितना अमाउंट इनएलिजिबल रहा है वो भी हमने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। तीसरी सेक्शन पाइवट टेबल का है, परसेंटेज वाइज जो ब्रेकअप है, कितना परसेंट हमारा इनएलिजिबल है पूरे साल भर में, टैक्स अमाउंट कितना इनएलिजिबल है और 6%, और यहाँ आपका लास्ट जो 100% जो ग्रैंड टोटल करके हमने दिखाया हुआ है। सेकंड जो सेक्शन है ब्रेकअप ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। तीसरा है इनएलिजिबल और एलिजिबल फाइलिंग पीरियड वाइज, मंथ वाइज हमने यहाँ पे बताया हुआ है, और सेम एज इट इज हमने आपको टैक्स जो आपका एलिजिबल आईटीसी का बनता है वो हमने आपको बताया हुआ है। और फिफ्थ जो रिपोर्ट है हमारी इनएलिजिबल को हमने यहाँ पे बताया हुआ है, अमाउंट आईजीएसटी सीजीएसटी, वो हमने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करके बताई हुई है। सिक्स्थ जो रिपोर्ट है हमारी इनएलिजिबल हमारा किस मंथ में कितना है और किस मंथ में किस कारण से इनएलिजिबल है। मान लीजिए आपके काउंटर पार्टी ने फाइलिंग नहीं करी है 8th महीने में, तो उसका क्या अमाउंट है वो भी हमने यहाँ पे सेम एज इट इज प्लेस ऑफ सप्लाई की, प्लेस ऑफ सप्लाई का इनएलिजिबल होने का कितना अमाउंट दिख रहा है वो भी आपको मिल जाएगा आरसीएम की यहाँ पे, और उसके बाद इनएलिजिबल जो टोटल वैल्यूज है वो आपको यहाँ इस रिपोर्ट में मिल जाएगी। अब आ जाते हैं डेटा शीट पे। डेटा शीट में आपका लीगल पैन नेम, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, उसकी अमेंडमेंट, अगर कोई इनवॉइस अमेंडमेंट हुए है उस पे इनएलिजिबल है, काउंटर पार्टी फाइलिंग करी है नहीं करी है, या आरसीएम है, वो आपको सेम ब्रेकअप आपको विद आईजीएसटी अमाउंट के साथ आपको इस रिपोर्ट में दिख जाएगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट में। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारा जो होता है 3B क्रॉस यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपने सब कुछ फाइलिंग 3B की कर ली, जो आप लास्ट मोमेंट में जो आप टैक्स अमाउंट पे करते हैं वो सिर्फ जो पे करते हैं उसको हमने यहाँ पे सिर्फ
यूटिलाइज आपने कितना आईटीसी के थ्रू यूटिलाइज करा है, कितना आपने कैश के थ्रू करा हुआ है, वो हमने यहाँ पे ब्रेकअप करके इस रिपोर्ट में दिखाया हुआ है। जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये आपका थ्रू आईटीसी लायबिलिटी आपने पे करी है, और ये थ्रू जो आपने कैश करा है, और कितना परसेंट है वो भी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेजर के बेस पे ये रिपोर्ट तैयार होती है आपकी। और जो यहाँ पे आपको टैक्स रेट वाइज आईटीसी यूटिलाइजेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी का यहाँ हमने दिखाया हुआ है। वही सेम चीज हमने मंथ वाइज ब्रेकअप कर दिया है, किस मंथ में आपने आईजीएसटी को यूटिलाइज किया है, किस मंथ में आपने सीजीएसटी को किया हुआ है, वो सेम हमने मंथ वाइज दिखाया हुआ है। कैश पेड, जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, कैश पेड फॉर रिवर्स चार्ज एंड अदर देन रिवर्स चार्ज लायबिलिटी, यहाँ हमने मंथ वाइज डेटा आपको किस मंथ में आपने ज्यादा पे किया है रिवर्स और कम पे किया है, हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। और लास्ट जो हमारा है आईजीएसटी लायबिलिटी सेटलमेंट, कि आपने आईजीएसटी में कितना सेटलमेंट किया है, सीजीएसटी से कितना किया है, और एसजीएसटी से कितना किया है। और यहाँ पे हमने नीचे आपको कलर में दिखाया हुआ है कि पेड बाय आईजीएसटी, पेड बाय सीजीएसटी, सेम यहाँ पे आपको हमने ब्रेकअप करके दिखाया हुआ है। अगर आपके किसी मंथ में आपका इंटरेस्ट लग रहा हो, कोई किसी मंथ में आपने लेट फी करी हो और पूरे ईयर के बाद आपको देखना हो, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो डैशबोर्ड में हमने ब्रेकअप करके सेम जो बताया हुआ है, वही सेम चीज हमने पाइवट टेबल में दिखाया हुआ है। ये पहला सेक्शन टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज बाय आईटीसी बाय कैश, सेकंड हमारा यूटिलाइजेशन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मंथ वाइज आईटीसी यूटिलाइजेशन, चौथी जो रिपोर्ट होती है वो टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश, कितना आपने कैश में पे किया है, और यहाँ पे ओवरऑल टैक्स टाइप वाइज लायबिलिटी सेटलमेंट थ्रू आईटीसी एंड कैश पेमेंट के थ्रू आपने करा हुआ है, वो सेम हमने ये सारा पाइवट चार्ट में क्लैरिफाई करके दिखाया हुआ है। सारे रिपोर्ट की तरह लास्ट सेक्शन हमारा डेटा शीट का रहता है, यहाँ आपको पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं हम लास्ट रिपोर्ट, जो 26 AS रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपके लिए मतलब बेसिकली होता क्या है, इस रिपोर्ट में आपकी टर्नओवर को डिफाइन करता है ये रिपोर्ट। तो आपने जो भी आपने 3B फाइल करी होगी, उसके बेस पे आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है। जो आप गवर्नमेंट पोर्टल पे आप देखोगे कि 26 AS का जो पार्ट एच की डिटेल जो अवेलेबल होती है, वो सेम रिपोर्ट हमारे पास मल्टीपल जीएसटी के साथ हमारे इस्माइल जीएसटी सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, देखिए पार्ट एच जो आपका यहाँ पे आपकी कंपनी लीगल पैन नेम जीएसटी मल्टीपल अगर है आपको, तो वो भी आपको दिख जाएगा। टैक्स पेयर जीएसटी, यहाँ आपको मंथ वाइज मतलब आपका ARN नंबर क्या क्या रहा वो आपको दिख जाएगा। डेट ऑफ फाइलिंग भी दिख जाएगी, डेट ऑफ फाइलिंग किस मंथ में आपने फाइलिंग करी है और किस मंथ में आपने 3B करी है, और यहाँ आपका टोटल टैक्सेबल टर्नओवर आपका पूरा क्या रहता है वो भी आपको दिख जाएगा। ये तो हो गया हमारा 26 AS रिपोर्ट ऑन GSTR 3B, जो आप फाइलिंग करते हैं 3B, उसके बेस पे ये रिपोर्ट जनरेट होती है। लास्ट जो सेक्शन है हमारा कस्टम फील्ड रिपोर्ट, जैसा निष्ठा ने आपको बताया था, अगर आपके पास डिवीजन वाइज सेल्स है, मींस आपकी डेटा मतलब सर्विस इनवॉइस है, क्रेडिट नोट की कोई इनवॉइसेस है, और मतलब S&D का अगर पोज की कोई सेल है, वो आपका यहाँ पे हमने डिवीजन वाइज करके बताया हुआ है। ये सेम रिपोर्ट आपको व्यू सेक्शन पे मिल जाएगा, लेकिन हमने यहाँ क्या करा है, फिल्टर लगा के यहाँ डेटा आपके लिए सिंपल तैयार करके रखा हुआ है। जैसे ही मैं अगर मान लीजिए मेरे पास अभी डिवीजन कोड में ये सारी डिटेल्स दिख रही है, अगर मेरे को चेक करना है क्रेडिट नोट का, सो क्रेडिट नोट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ सिर्फ मेरा क्रेडिट नोट की कितना टैक्सेबल रहा, कि आईजीएसटी कितना है, वो साल भर की मेरे को जनरेट करके दे देगा। अगर मेरे को पूरा देखना है कि जो देखिए पहली चीज क्या है यहाँ पे कि ओवरऑल डिवीजन वाइज सेल्स वैल्यू जो भी आपने ऊपर अप्लाई करी है फिल्टर, उसके बेस पे यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए पहला सेक्शन क्रेडिट नोट डिवीजन, जिसमें आपने कोई डिवीजन ही नहीं दिखाई हुई है, उसका आपने सेल करा हुआ है। सर्विस इनवॉइस, S&D मॉड्यूल, मतलब पोस्ट से जो भी आपने सेल वगैरह करी होगी, वो हमने टैक्सेबल मतलब ओवरऑल कितना आपका टैक्सेबल बन रहा है वो सारा हमने करके बताया, और एक ही साथ हमने सारी चीजों का ग्रैंड टोटल करके भी दिखाया हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं फाइलिंग पीरियड बेसिस, यहाँ सेम चीज को हमने मंथ वाइज क्लैरिफाई करके बताया हुआ है। देखिए क्रेडिट नोट की जो सेल रही है वो चौथे और 5वें महीने में रही है, फिर उसके बाद छठे 7वें महीने में नहीं रही, डायरेक्ट 11वें महीने में रही है। ये भी चीज हमने आपको दिखाया हुआ है। अब इसके बाद है लास्ट डेटा शीट
डेटा शीट में आपका सेम सारी रिपोर्ट की तरह मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको डिवीजन कोड, आपका उस डिवीजन टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी कितना रहा, सीजीएसटी कितना रहा, मेरा टोटल टैक्स कितना बन रहा है, ये सारी चीज आपको इस रिपोर्ट में दिख जाएगी। ये आपका हो गया बेसिकली डिवीजन वाइज सेल्स रिपोर्ट। अब जो मेन थिंग है कि प्लांट वाइज सेल्स रिपोर्ट, अगर आपके कई सारे स्टोर्स हैं, अगर आपको देखना है कि मेरी कौन से स्टोर से ज्यादा सेल हो रही है, कौन से स्टोर से सेल ही नहीं हो रही है, किस स्टोर से कम सेल हुई है, उसका भी हमने ब्रेकअप करके यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए मेरे पास देखिए मल्टीपल प्लांट कोड है यहाँ पे, जैसे बिजनेस जोन, एफएक्यू मल्टीपल स्टोर, एमजी स्टोर, सेक्टर 50, अर्बन स्क्वायर, ये सेम हमारे मल्टीपल स्टोर्स हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो मैंने ऊपर फिल्टर लगाया है उसके बेस पे पूरा अमाउंट कैलकुलेट करके बताया हुआ है। बिजनेस जोन से मेरी कितनी टैक्सेबल है, आईजीएसटी कितना दिखाया है, सीजीएसटी कितना है, ये सारी चीज हमने दिखा के यहाँ पे क्लैरिफाई करके बताई हुई है। अब इसके बाद हमने सेम उसी चीज को हमने मंथ वाइज भी यहाँ करके बताया हुआ है कि इस स्टोर से आपकी 6th मंथ में कितनी सेल रही, और एफएक्यू मल्टीपल स्टोर से कितनी, मतलब आपको यहाँ पे फाइलिंग पीरियड बेसिस पे दिख जाएगा। और लास्ट हमारी सारी रिपोर्ट की तरह प्लांट कोड्स के साथ आपको टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी अमाउंट सारी आपको क्लैरिफिकेशन दिख जाएगी। ये हमारे इजमाई जीएसटी पे 6 टाइप्स की रिपोर्ट्स थी, और आई होप कि ये आपको वेबिनार वेरी यूजफुल रहा होगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स चाहते हैं कि इजमाई जीएसटी को हम मतलब कंपैरेटिव रिपोर्ट और रिटर्न रिपोर्ट दिखाएं। तो अगर आपको देखिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, और हमारी देखिए सपोर्ट टीम अवेलेबल है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए स्टेप बाय स्टेप। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह, अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मीटिंग के चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये Thank you, देखिए Ankit. यहाँ पे हमारे पास 21 रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आपको जिस भी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ से जनरेट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मतलब हमारी हेल्प की जरूरत है तो हम अवेलेबल है, आप सपोर्ट में हमारे सपोर्ट में मेल आईडी और अकाउंट मैनेजर को कॉल करके देख सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं। Yeah, hi everyone. Thank you, Ankit. Thank you, Nista. If anybody have any query regarding to this topic, please put your question in the question answer box. Nista, thank you. Thank you, everyone. Thank you for today's webinar. Thank you. Thank you, all the speakers. Bye. Have a nice day.